Hello everyone, online class 8th, subject SST, lesson 11, economic development, आर्थिक विकास. In our daily life, we see people going to work. Some of them go to agriculture fields, factories, different civil services, educations, health, sanitations, transportations, security, etc. Some have their independent businesses and industries. While the above work, they earn income. The people meet their needs by their income. Some people earn their livelihood thought productions and some thought services. If the entire income of the people is added to total income will be now as national income, and if divided by the population then the result will be now as per capita income. हम दैनिक जीवन में व्यक्ति को किसी न किसी काम पर जाते देखते हैं. कुछ व्यक्ति खेतों में, कारखानों में, विभिन्न नागरिक सेवाओं में, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, यातायात सुरक्षा आदि स्वतंत्र व्यवसाय अथवा उद्योग व्यापार में कार्य करते हैं. उपरोक्त कार्यों से यह उन्हें आय प्राप्त होती है. इस आय में वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं. इस प्रकार कुछ व्यक्ति उत्पादन से तथा कुछ व्यक्ति सेवाओं से आय अर्जित करते हैं. यदि देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल को राष्ट्रीय आय कहेंगे, और इस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल देश के प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा. पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या. On the basis of this national income of per capita income, India, Pakistan, China and Nepal have been declared developing countries, and the US, जापान, सिंगापुर and Britain are now as developed countries. इसी राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि देश विकासशील तथा अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन आदि विकसित देश कहलाते हैं. The focus is mostly on the necessities like food, clothes, house, health and education in the developing nation. Before 1947, India was under the British rule. The British plundered our country's wealth recklessly. Their rule gave a severe jolt to the domestic economy of India. The policy of the British was to use India as a vast source of raw material and a market for their finished goods. They did not encourage India industries. They could get the raw material from India at a responsible prices and sell their goods in India at a much higher rate. As a result of such policies, India became very poor. Independent India was burdened with a backward economy. As inheritance, India is mainly an agriculture country. At percentage 60 population is engaged in agriculture, hence it is essential to now the एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इस राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि देश विकासशील तथा अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन आदि विकसित देश कहलाते हैं. विकासशील देशों में व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति में अधिक ध्यान दिया जाता है. सन 1947 के पूर्व तक ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हानि हुई. भारत को कच्चे माल का स्रोत तथा तैयार माल को बाजार बना दिया गया. ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था. उनका कच्चा माल सस्ती दरों पर खरीद लेते थे तथा अपना तैयार माल महंगी दरों पर बेचते थे. इन कारणों में भारतीय निर्माता प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके. फलस्वरूप भारत में निर्धनता बढ़ गई. स्वतंत्र भारत
को एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है। वर्तमान में भी लगभग 60% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि में के काम में लगी है। अतः कृषि विकास को जानना आवश्यक है। Agriculture development. Agriculture is the base of Indian economy, and it has 26% contributions in the total gross domestic product (GDP). Indian agriculture produces food grains and also provides raw material for industries, plantation, animal husbandry, for forestry, fisheries, etc. are included in agriculture. There is diversity in the case of agriculture in India. The type of soil, sunshine, rain, sowing time, reaping of harvest are different in various area। और हम देखते हैं कृषि विकास। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान है। भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि भी शामिल है। कृषि की दृष्टि से भारत में विविधता है। भूमि पर के प्रकार व संरचना, धूप एवं वर्षा, फसलों को बोने एवं पकने के विभिन्न समय आदि अलग अलग क्षेत्रों में अलग होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का महत्व। A vast population is engaged in agriculture is India. They get employment, food grains and income from it. We get raw material for industries. With the crops produced, the farmer get income which lifts their lifestyle. The productivity of agriculture is not even in every part of India. Even today, our agriculture slowly depends on monsoon due to natural differences like nature of land, climate, irrigation facilities. The farmer opt for different agriculture. The few types of agriculture are। हमारे देश में बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है। इससे इन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। फसलों में किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता भी समान नहीं रही है। मानसून पर कृषि की निर्भरता अभी भी बनी रहती है। प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भूमि की प्रकृति, जलवायु तथा सिंचाई की सुविधाएं के कारण भारतीय किसान विभिन्न प्रकारों की कृषि करते हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आत्मनिर्भर कृषि। Most of the farmers in India still use traditional tools for farming. They cannot make use of refined seeds, fertilizer, and pesticide due to financial restraint, and it affect production. Their food production is consumed by their family member। देश के बहुसंख्यक किसान छोटी और बिखरी जोतों व परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्नत बीज, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अतः इससे उत्पादन भी कम होता है और इनका उत्पादन खाद्यान्न के रूप में उनके परिवार के उपभोग में प्रयुक्त हो जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि। इन द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज वेयर फॉरेस्ट are in evidence, people make land worth cultivation by cutting trees and burning its stem and roots. Some coarse grains like dry maize, millet, etc. is sown in this land. However, this type of farming has been discouraged as forest was adversely affected and production was also very less। अब हम देखते हैं अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में वन भूमि में वृक्षों को काटकर तनों और शाखाओं को जलाकर भूमि कृषि योग्य बनाई जाती है। इस भूमि में कुछ मोटे अनाज जैसे शुष्क धान, मक्का, ज्वार आदि बोया जाता है। अब यह प्रथा हतोत्साहित कर दी गई है। इससे वनों का विनाश होता है तथा उत्पादन भी अत्यंत कम प्राप्त होता है।
प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स planting trees or bushes which give yield over a period of few years. They require efficient and scientific methods of cultivation, skilled but cheap local labor, and worldwide marketing faculties. Plantation is thus a large unit producing a single crop on a scale that resembles factory production. एग्जाम्पल टी, रबर एक्सेट्रा। रोपण किसी किसी के तात्पर्य ऐसा पेड़ पौधे से है जो कुछ वर्ष की अवधि के उपरांत उत्पादन प्रदान करते हैं। इस तरह के उत्पादन में विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों एवं स्थानीय सस्ते और कुशल खेतिहर मजदूरों के साथ साथ विश्व स्तर पर पर्याप्त कार्य क्रय विक्रय सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अतः रोपण किसी एक कारखाने की इकाई के समान होती है, जैसे चाय, रबड़ आदि। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन कृषि। वाई द यूज ऑफ irrigation facilities, fertilizer, pesticide farming on the single land continuously and many times in a year is called intensive agriculture. Is this type of farming on a small land. More production and income is derived from a small land. Why agriculture? सिंचाई की सुविधा, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करके एक ही भूमि पर लगातार कई बार एक वर्ष भर ऋतुओं के अनुसार कृषि कार्य करना गहन कृषि कहलाता है। इससे सीमित भूमि पर कृषि करके अधिक उपज तथा आय प्राप्त की जा सकती है। In our country, various plant and food grain like pulses, oilseeds, fibers, grains, beverages, and cash crops are produced. India has become self-reliant in India production of food grain. This self-dependence is all due to plantation, intensive agriculture, use of latest tools, high yielding variety seeds, manure, fertilizer, and pesticides. Towards we are second to China in the production of rice and wheat. अब हमारे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें, खाद्यान्न, दलहन और तिलहन रेशेदार फसलें पाई जाती हैं। फसलें और नकदी फसलें उगाई जाती हैं। खाद्यान्नों में के उत्पादन से हमारा देश अब आत्मनिर्भर हो गया है। यह आत्मनिर्भरता हमें रोपण एवं गहन कृषि, सिंचाई एवं कृषि के आधुनिक यंत्रों का उपयोग, उन्नत बीज, खाद एवं उर्वरक, कीटनाशकों के समुचित उपयोग से प्राप्त हुई है। आज हम चावल व गेहूं के उत्पादन से चीन के बाद दूसरे प्रमुख स्थान पर हैं। With self-dependence on food grain and export of agriculture productions, foreign currency is earned, which increases national income. Hence, development of agriculture is instantaneous. खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। अतः कृषि का विकास आवश्यक है। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसलें। This crop is sown in the month of June, July, and harvesting is done in September, October. Rice, maize, millet, and cotton are main खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ फसलें, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का व कपास खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। रबी फसलें। This crop is sown in the month of October, November, and harvesting is done in March, April. Wheat, barley, gram, mustard, and oilseeds are main रबी क्रॉप्स। अब यह फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर व अलसी रबी की प्रमुख फसलें हैं। कैश क्रॉप्स, व्यापारिक अथवा नकदी फसलें। The crops used as raw material in industries is called cash crop. Soybean, cotton,
groundnut, tea, coffee, jute and oil seeds are main cash crop। जो फसल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती है उसे व्यापारिक या नकदी फसल कहते हैं। इन फसलों में सोयाबीन, कपास, मूंगफली, चाय, कॉफी, जूट व तिलहन प्रमुख है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। इन फैक्ट द डेवलप्ड कंट्रीज शुड नॉट ओनली बी सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन वर्ड्स, they should be sound in export too. This capacity includes capital and infrastructural industries, iron, cement, machines, etc. are and processing of raw material like cloth from cotton, sugar from cane, paper from woods, aluminium from bauxite, steel from iron, etc. The economic capability of a country is judged by the development of its manufacturing industries. These industries provide employment to the people. Dependence on agriculture is reduced and foreign income is earned from the export of manufactured goods। अब वास्तव में विकसित देशों में के पास खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि निर्यात की योग्यता भी होनी चाहिए। इस योग्यता में विभिन्न सुदृढ़ औद्योगिक आधारभूत उद्योग, लोहा, सीमेंट, मशीनें आदि एवं उत्पादों को संसाधित करना, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लकड़ी से कागज, बक्साइट से एल्युमिनियम, लोहा से इस्पात बनाने की क्षमता होती है। किसी देश की आर्थिक शक्ति उसके निर्माण उद्योगों के विकास में मापी जाती है। इन उद्योगों से व्यक्तियों की रोजगार मिलता है, कृषि पर निर्भरता कम होती है, निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी for the people. The industries are divided into small and large scale, private and public sector, joint and cooperative groups. The industries can be divided in two groups on the basis of the use of raw material। औद्योगिक विकास देश के नागरिक के लिए समृद्धि लाता है। उद्योगों को छोटे व बड़े पैमाने के उद्योग, निजी व सार्वजनिक, संयुक्त व सरकारी आदि वर्गों में बांटा जाता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर भी उद्योगों को दो वर्गों में बांटा जाता है। उनका जो है पहचान इस तरह है। थैंक यू।